Good morning, boys and girls. This is sequel to the previous lecture delivered on the cockfight. Okay, boys and girls, let us try to understand today the characteristic of Shahmal, and then we will be looking at the theme of the story and also the title of the the lesson. Three important issues we will be dealing today. First, character sketch of Shahmal. Now this is displayed on your screen. Try to understand this character. Shamal is the wife of Ghulam Khan. She is beautiful and young. She is typically illiterate Kashmiri woman. Now this is a little bit important to understand that she is typically illiterate Kashmiri woman. Shamal is superstitious. Superstitious why? We will try to clarify it. When the cock crows at the fall of the night, she tells her husband, "Didn't you hear the cock? He is crowing now at the fall of the night." Her voice is a wail. You understand? These are the words that Shamal spoke to her husband. And these words tells you that she is superstitious. Otherwise, she has exaggerated the price of the cock, but at the same time, when cock starts crowing at the fall of night, she tells her husband, "Didn't you hear the cock? He is crowing now at the fall of the night." When she speaks these words, these are not decent words. It is aggravated type of language that is used by Shamal to her husband. That's why her voice is a wail. यानी बहुत ही तेज तरीन जबान. What a creature of ill omen to bring home. Right? Otherwise क्या था? Otherwise बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी किसकी? कॉक की. लेकिन you can understand through these lines. What a creature of ill omen to bring home. कितना खतरनाक किस्म का मनहूस किस्म का मुर्गा लाया है घर. Again she says, "Get up quickly and kill him." This happens when cock crows at the fall of night. Get up quickly and kill him. Don't you know that the cock that crows at the fall of night should be killed immediately? It is a creature of ill omen. Boys and girls, I believe you have you have gone through the entire lesson, the whole lesson. You have understood the lesson. This is the language that is spoken by Shamal, and that is very much in your lesson. Do one thing, please, and please, I request you that go through the whole lesson. ठीक है? और उससे ये हो जाएगा कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो टंग यूज़ हुई है शामाल की ज़बान, इतनी तेज़ तरार ज़बान, और जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है दैट द कॉक दैट क्रोज एट द फॉल ऑफ नाइट शुड बी किल्ड इमीडिएटली. इसको फटाफट मार देना चाहिए. इट्स ए क्रिएचर ऑफ इल ओमन. राइट नाउ यहाँ तक हमें जो बात आपने समझनी है वो ये है कि okay, Shamal is beautiful, she is young, but at the same time there is a drawback, a flaw to her device, that is she's illiterate, and because of illiteracy she is considered to be narrow-minded woman, and at the same time you're finding in the lesson she is superstitious, वहमी किस्म की औरत. ठीक है, तो हम प्रस्त लेडीज को बोलेंगे. तो दैट इज़ that is one of the important feature that you have to understand with regard to Shamal's character. Now see another important paragraph. Shamal is spiteful and a show-off. This is clear from the following remarks made by her. Now try to understand these remarks. This is a type of cock I was looking for. जिसको ये पहले बात, when she is trying to exaggerate the situation, right? This is the type of cock I was looking for. Of course, the markets are flooded day and night with scavenger cocks which the neighborhood has bought. ये अल्फाज तब बताए गए
जब वो चाहती थी इन यू नो वेरी लाउड वॉइस, जब वो चाहती थी कि उसकी जो आवाज़ है वो उसके हमसाया जानी द सिकिनी तक पहुँचे। ठीक है, ये अल्फाज उस वक़्त बोले गए थे। ठीक है, और ये अल्फाज उस वक़्त इस वजह से बताए गए थे क्योंकि उस शामाल के नेचर में ये बात है, जिस वक्त वो उस जो ये है इसको क्या कहते हैं, जानी द सिकिनी जो इसकी हमसाया औरत है उसको चढ़ाना चाहती थी। उसको यू नो शी इज़ ट्राइंग टू यू नो टोंट दैट पर्टिकुलर लेडी। दैट्स वाई शी दीज वर्ड्स अगैन, दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉक आई वॉज लुकिंग फॉर। ये लेसन की शुरुआत में ही होती है बात जिस वक्त ये मुर्गा उनके घर आ जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स द मार्केट्स आर फ्लडेड डे एंड नाइट। ठीक है, इस टाइप का कॉक वो ढूंढती थी। बट सी दिस स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स द मार्केट्स आर फ्लडेड डे एंड नाइट विद सिक्वेंजर कॉक्स। सिक्वेंजर बदबूदार मुर्गे, जो मुर्गे क्वालिटी में अच्छे ना हों, जिनसे बदबू आती हो, उस तरीके के मुर्गे। यानी मार्केट में अदरवाइज़ क्या है, बहुत सारे मुर्गे हैं, काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन क्या है उनसे बदबू आती है। विच द नेबरहुड हैज़ बॉट। नेबरहुड से मतलब उसका ये है कि जानी द सिकिनी ने जो अपने घर के उसमें घर में जो मुर्गा वगैरह है वो असल में सिक्वेंजर कॉक है। ये उसको सताने के लिए ये अल्फाज बताए गए थे टेक्स्ट में। ठीक है, दैट्स वाई शामाल इज़ कंसिडर्ड हियर एज ए स्पाइटफुल वुमन। स्पाइटफुल वुमन, उसकी जो टंग है दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, that that is ferocious type of tongue she is using, and she is trying to show off. Okay, now see another uh, paragraph. Shamal is snobbish you understand, जिसको आप जिद्दी बताएंगे। She has been waiting for the call by the Johnny the Skinny ever since the rooster was brought, and the instant it comes, she strikes up an attitude, lifts up her head, smooths out the imaginary creases in her pen, and flourishes her silver earring, and then saying, try to understand, ये है उसका स्टाइल। फैरन की क्रीज को ठीक करना, कानों के झुमके जो हैं उनको उनके ऊपर हाथ लेकर उनकी वो शाइन को थोड़ा तेज़ करना, अपना एक स्टाइल है, राइट। और स्टाइल का क्या मकसद है? स्टाइल का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है अपनी हमसाया जानी द सिकिनी को सताना, उसको चढ़ाना, उसके ऊपर किसी तरीके की गंद वगैरह जो है उसको उछालना। ये है बेसिकली दैट्स वाई एक ज़िद्दी तरीके की लेडी है शामाल। And then what she says, that is very interesting to understand. My husband. Now these are very interesting words told by Shamal. My husband had just bought it, 4.5 rupees he paid for it. 4.5 rupees he paid for it. Shamal stressed the word rupees more than her husband had done a short while back, right? जिस वक्त शामाल के हस्बैंड ने ये मुर्गा लाया था उस वक्त इसके ऊपर उसने स्ट्रेस दिया था रुपीज़ के ऊपर, यानी 4.5 रुपये का पड़ा जी ये मुर्गा। ठीक है, और शामाल ने उस स्ट्रेस को और एग्जैजरेट किया, और जब ये बात कर रही है उस टाइम ये इसको ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दे रही है रुपीज़ लफ्ज़ के ऊपर, राइट। And in this paragraph you have to understand one thing simply, that she is a snobbish type of lady, right? Now again, Shamal is a sharp tongued जिसकी बहुत तेज ज़बान चलती हो। She speaks to others particularly to Johnny the Skinny in a harsh, critical and insulting manner. उसका तो हमेशा ये तरीक़ाकार ही रहा था, जानी द सिकिनी के साथ बात करना इन ए वेरी हार्श लैंग्वेज, इन ए वेरी क्रिटिकल लैंग्वेज। क्रिटिकल यू अंडरस्टैंड, क्रिटिकल लैंग्वेज होती है जिस पे किसी को सताया जाए, उस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना। वेयर यू फाइंड टॉन्टिंग इज़ देयर, वेयर यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ abusing and accusing, such type of words are emitting out of the mouth.
And you know what type of lady now she is? She is a sharp tongued lady. Now you have to remember these things which you have to take into consideration in order to discuss the character sketch of Shamal. Okay, now see another thing that is very interesting to understand. Shamal is jealous of Johnny the Skinny. Okay, जेलियस होना जो है ये एक इमोशन है, ये हर एक का होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ ज़्यादा ही है इस लेसन में. शी ऑलवेज क्रिटिसाइजेज एंड टोंट्स हर. ठीक है, she always criticizes and taunts her simply means Johnny the Skinny. Okay, when her roaster defeats Johnny's roaster, जिसके रोस्टर्स के दरमियान आपस में लड़ाई हुई, शामाल के मुर्गे ने डिफीट दे दी जानी के रोस्टर को. उस टाइम क्या हुआ? शी क्रिटिसाइजेज हर बाय सेइंग दैट ए रोस्टर ऑफ हर मे हैव 1,000 वाइसेस. अगर उसके रोस्टर को बहुत सारी खामियां होंगी, हज़ारों खामियां होंगी. ही मे इवन क्रो एट द नाइट फॉल. अगर वो रात के टाइम अजाने भी देगा, यानी नहस भी होगा, मनहूस भी होगा. दीज आर ऑफ कोर्स नो अकाउंट इन हर आइज. ठीक है, इफ़ शी हैज़ द प्रॉपर फाइटिंग मेटल. अगर उसके पास सिर्फ एक खासियत है, लड़ने की खासियत है, तब ये उसकी नहूसत होना, रात के टाइम अजाने देना, इनका कोई वैल्यू नहीं है. राइट नाउ थ्रू दिस स्टेटमेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये क्या है. ये असल में बिहेवियर है शामाल का. यू अंडरस्टैंड, ये बिहेवियर है शामाल का. शामाल किस टाइप की लेडी है, और उसको बड़ा मज़ा आता है जिसको तो वो इस लड़ाई के झंझट में इन्वॉल्व होती है. शी इज़ दैट टाइप ऑफ लेडी. दिस वॉज द टाइप ऑफ रोस्टर शी वॉन्टेड. And this was the type of roaster she wanted. अगर उसके पास फाइटिंग मेटल है, इस टाइप का वो मुर्गा चाहती थी. Otherwise the market is flooded with innumerable stinking scavenger roasters. Okay boys and girls, I believe you have understood now the character of Shamal. Shamal is jealous. You have to remember this thing. Shamal is a sharp tongued lady, and at the same time she is snobbish type of girl, snobbish type of lady, right? And then you're finding a very spiteful and a lady which makes show off, right? By show off simply I mean empty. What is important to understand? Empty vessels make much noise. ठीक है, जिनके पास and you are finding a number of other things like she is superstitious, lady. But remember I said जिन लोगों के पास कुछ होता है ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, ऐसे में मिसाल दूँ आपको कि जो भी फ्रूट लेडन ट्रीज़ होंगे वो ऑलवेज डाउन टू अर्थ होंगे. ठीक है, उनका झुकाव ज़मीन की तरफ होगा. या जिस वक्त आप दरिया को देखेंगे काफ़ी ज़्यादा शोर करता है, जब ये समंदर में पहुंच जाता है वहाँ पे साकिन हो जाता है. ये कोई शोर नहीं करता है. पता नहीं कितने दरिया मिल के समंदर बनता है. समंदर कभी भी शोर नहीं करता है, उसमें इतनी डेप्थ होती है. ठीक है, जो लोग ज़्यादा पॉम्प एंड शो करते हैं ऑब्वियसली क्या होते हैं, दे डिडंट हैव एनी वर्थ, राइट, बट दे आर सिंपली ट्राइंग टू शो ऑफ, राइट. और ये शो ऑफ करना जो है ये इलिटरेसी का एक आंसर है. इलिटरेसी का एक आंसर है, और वही आंसर राइटर ने डिस्प्ले करने की कोशिश की है. अमीन कामिल ने इस लेसन में उस आंसर को ऊपर लाने की कोशिश की है कि जो बजाते ख़ुद जो इलिटरेसी है ये एक तरीके का बड़ा गुनाह है. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिन, राइट. एंड व्हाट वी डू, वी मस्ट always remain away from this. That means we should always seek education, we should always learn things. और जो लोग होते हैं वो उनका पॉम्प एंड शो नहीं होता है, जिनमें डेप्थ होती है, इल्म की डेप्थ, उठने बैठने का, मोरालिटी का, इथिकल वैल्यूज़, वो ऑलवेज डाउन टू अर्थ होते हैं. ठीक है, आई बिलीव यू हैव नाउ अंडरस्टूड द कैरेक्टर स्केच ऑफ Shamal. Now let us try to understand the theme of the lesson. Now boys and girls, a very important question, you will expect it in your examination. Let us see first see the theme. This short story depicts Kashmiri culture
and is based on the theme that we should have good relations with our neighbors, ठीक है। और ये कश्मीरी कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रहा है, वी मस्ट ऑलवेज हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, ठीक है। ये इस स्टोरी का एक्चुअली थीम है। वी शुड बी फ्रेंडली टू देम, वी शुड नेवर स्पीक टू देम इन सच ए वे दैट दे गेट हर्ट, ठीक है। ऐसे आप बात नहीं करेंगे अपने हमसायों के साथ कि उनको किसी तरीके का दुख पहुँचे। यानी मुनसर सब कुछ ज़बान पे है, तो बुनियादी तौर इस लेसन का मकसद और मुद्दा भी यही है। जिस वक्त आप अपनी ज़बान को बहुत ही नरम गुफ्तगू करेंगे और बड़ी डिसेंसी के साथ चलाएंगे, तब आपके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, अच्छे डेवलप होंगे। लेकिन इस लेसन में हमें कुछ और ही मिलता है, राइट। रादर वी शुड स्पीक टू दैम यूजिंग सच वर्ड्स विच मेक देम हैप्पी, राइट। जिस वक्त आप ऐसा करेंगे, ये एक थीम है कि वी शुड ऑलवेज लुक आफ्टर व्हाट, लुक आफ्टर आवर नेबर्स। हम कभी भी ऐसी बात ना करें जिससे उनको दुख पहुंचे, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए आप, द स्टोरी इज अबाउट टू वेमन, शामाल एंड जानी द सिकेनी, एंड यू नो इट, राइट। ये दो औरतों के मुतल्लिक है, हु आर नेबर्स बट दे हैव नो गुड टर्म्स विद ईच अदर। उनकी आपस में एक दूसरे के साथ टर्म्स अच्छी नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ इरिटेसी, बिकॉज ऑफ नैरो विजननेस, बिकॉज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, यू अंडरस्टैंड। बहुत छोटी नज़र वाले लोग जो होते हैं उनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है। दे आर शॉर्प टंगड, पर्टिकुलरली शामाल हु इज स्पाइटफुल, स्नोबिश एंड इरिटेबल। एमंग दीज टू जो औरतें हैं, इन दोनों में ज़्यादा जो है शामाल ही है, हु इज स्पाइटफुल, बहुत ही नफरत से भरी पड़ी औरत, स्नोबिश ज़िद्दी औरत, एंड इरिटेबल, यानी जिसकी ज़बान भी ठीक ना चलती हो, ठीक है। इस तरीके की औरत है कौन? मोर शॉर्प टंगड what is called shamal than Johnny the skinny. She praises her roaster to the skies. वो बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि इसके अपने मुर्गे की रोस्टर की, बट क्रिटिसाइज जॉनीज रोस्टर, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है कि इसकी जॉनी के मुर्गे की, एंड कॉल इट ए स्टिंकिंग एंड ए स्कवेंजर रोस्टर। उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके मुर्गे के लिए, दैट आर स्टिंकिंग एंड स्क्वेंजर। I said both the words have negative connotation, right? It simply means those roasters are not considered to, that roaster is not considered to be nice, right? तो ये एक्चुअली इस तरीके से उसको चढ़ाती भी है और उसके मुर्गे की मुखालफत, अपने मुर्गे को प्रेज करना और दूसरों के मुतल्लिक गलत सोचना। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द वुमन, ओके। द राइटर indirectly wants to suggest that we should not be jealous of the possessions of our neighbors if we want to have peace of mind. जिन लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनको विजन उनका ब्रॉड होना चाहिए, उनको कभी भी जेलियस नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों की प्रोग्रेस के ऊपर। स्पेशली जो नेबर्स होंगे उनकी प्रोग्रेस करते वक्त उनको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इस लेसन में होता नहीं है। और इसी थीम के ऊपर ये एक्चुअली जो है ये लेसन जो है ये लिखा गया है, ठीक है, ओके। And another theme can be that only human beings believe in narrow domestic walls. देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम, जिस थीम को हम कभी कभार इग्नोर कर लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे बिलीव इन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, राइट, दे बिलीव इन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ऑन द अदर हैंड, birds do not know any wall or boundary at all, right? If you talk of birds, they don't know any wall, they don't know any boundary, they are beyond limitations, right? They can go anywhere, they move anywhere, they sit and fly with number of other birds as well. Now here what happens, Johnny the Skinny rooster crosses the wall, क्योंकि जॉनी का रोस्टर जो है दैट इज क्रॉसिंग द वॉल एंड एंटरिंग into the compound of Shamal, who feels irritated and tells Johnny to control her roster. और वो इतनी इरिटेट होती है और वो बताती है किसको, जॉनी को, टू कंट्रोल हर रोस्टर। अदरवाइज मुर्गा है, एक कंपाउंड से दूसरे में जाएगा, इट डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। बट it is clear that birds can go anywhere and sit anywhere. There is a lesson for human beings not to quarrel with one another. ये एक्चुअली है थीम, ठीक है। लेसन क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए? नॉट टू quarrel with anyone with one another and avoid making narrow domestic walls, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम है कि वो बनाते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स,
एक्चुअली क्या होना चाहिए, वी शुड लिव इन पीस, ह्यूमन बींग्स को पीस के साथ रहना चाहिए. दिस वॉज द अनदर इशू. एंड द लास्ट इशू दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग टू नोट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वेदर द टाइटल इज आप्ट, टाइटल हमारा सूटेबल है इस स्टोरी में या नहीं है. ठीक है, तो इस टाइटल के हवाले से हम इसको देखेंगे. यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज वेल इन योर एग्जामिनेशन. रिमेंबर, आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो you have to understand all these things and you have to go through all these things, right? That is very important to understand. Otherwise आप ऐसा ना हो कि आप जनाब अली किसी चीज़ को स्किप कर डालें. ठीक है, तो अगेन आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू द होल लेसन, सारे लेसन को पढ़ें आप, उसके थ्रू निकलें, और जहाँ जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन टॉक टू मी. ओके, नाउ सी दिस टाइटल ऑफ द स्टोरी. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज ए रोस्टर. ठीक है, ये दिस ऑब्वियसली ए रोस्टर. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम. अगर आप जो रोस्टर्स हैं, जो मुर्गे हैं, इफ़ यू नो अगर आप इनको निकाल देते हैं स्टोरी में से, इफ़ यू इजेक्ट देम आउट ऑफ द स्टोरी, योर स्टोरी डजंट हैव वैल्यू. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी. Protagonist, as I said, it is the main character in the story, right? He brings both happiness and sadness in the life of Shamal. He his owner, okay, that are basically the roasters. They bring happiness as well as sadness. Happiness उसको जिसको ये लाया गया मुर्गा, और इसकी कॉस्ट जिसको तो वो विद सिट्रस बोलती है ताकि हमसाया भी सुने, तो उस टाइम शी इज़ वेरी हैप्पी, बट शी इज़ सैड एट द मोमेंट जिस वक्त उसको पता चलता है कि दिस रोस्टर क्रोज एट द नाइट फॉल, राइट, एट द मिड ऑफ द नाइट. उस टाइम उसको बड़ा अफसोस होता है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है जिस वक्त शामाल का मुर्गा जो है डिफीट्स किसके मुर्गे को, जानी द सिकिनी के मुर्गे को डिफीट देती है. ठीक है, दैट्स वाई बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस गोज टुगेदर इन द स्टोरी. दिस इज कंसिडर्ड टू बी a tragic comic type of story. Okay, when the roaster is bought, Shamal becomes very happy. But when the same rooster begins to crow at the fall of the night, she becomes extremely sad. And she decided to get it slaughtered. और वो डिसाइड करती है कि इस मुर्गे को फटाफट लेकर इसको ज़बह कर दिया जाए, राइट. ऑन रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्लॉटर्स टू टेक द रोस्टर टू हिम. अब उसने समद हु इज़ कंसिडर्ड टू बी स्लॉटरर, जिसको तो वहाँ से वापस आई, अब उसने तहिया किया कि वो मुर्गे को ले जाएगी और उसको ज़बह करवाएगी, राइट. उसी टाइम उसने क्या देखा, शी सीज हर रोस्टर डिफीटेड जॉनीज रोस्टर in an unexpected turn of events, giving the story its anticlimax end. Anticlimactic end, right? You understand? एक्चुअली क्या होता है, जिसको वो वापस आई, अब उसने लेना चाहा किसको, अपने मुर्गे को समद के पास इन ऑर्डर टू स्लॉटर इट. लेकिन इन द मीन वाइल उसने कंपाउंड में देखा कि मुर्गे तो आपस में लड़ रहे हैं, और शामाल का जो मुर्गा है उसने डिफीट दे दी जानी के मुर्गे को, और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से इसका सारा सिस्टम चेंज हो गया. ठीक है, उसका जो आइडिया था टू टेक हर टू समद, लेकिन वो इख्तिताम हो गया. शामाल चेंज टू हर माइंड नॉट टू किल द रोस्टर. अब उसने डिसाइड किया कि इसको ज़बह नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें एक ज़बरदस्त क्वालिटी है, दैट इज़ द फाइटिंग क्वालिटी, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका अपर हैंड रहेगा किसके ऊपर, जानी द सिकिनी के ऊपर. दैट्स वाई शी डिसाइडेड नॉट टू किल द रोस्टर. ओके, thus the story has an appropriate title. Now through this you can easily understand the story has very apt, very vivid and a very clear cut appropriate title. Okay, I'm leaving you here. We'll discuss its other areas in the next lecture. Goodbye. May God